losing 5-10 minutes. 5:30 टाइम में आप उससे पहले पहुंच जाओ ना, अभी तो घर पे ही हो, आने जाने का भी टेंशन नहीं है। प्लीज 5:30 का टाइम है तो 5:25 तक पहुंच जाओ प्लीज, ताकि 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। वी कैन स्टार्ट शार्प एट 5:30 प्लीज। हाँ, सो लास्ट टाइम ये मैंने क्वेश्चन दिया था that a bar is given as, जिनको दिख रहा है देख लो ध्यान से, a bar is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b bar is m I cap 1j cap and minus 3k cap. यहाँ पे ये जो m है, see this here, m is there, find this m. This was the question last time. Now आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये सॉल्व किया है and I'm very happy that you got the answer also. Good, keep it up. लेकिन there are some student who are not able to solve. जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, I'm explaining you. और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, those who are new, attending first time or second time only lecture, आपको see अगले 2-3 दिन तक डाउट रहेगा. You will have some difficulty for next 2-3 lectures. उसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते. Later definitely we will revise it for you. आप अभी फिलहाल ध्यान दो, जितना आप समझ सकते हो उतना ट्राई करो. Okay. See, now those who are not able to solve this, I am explaining here. See, question में ये given है कि a bar और b bar are perpendicular vectors. a और b आपस में perpendicular है. So को एक चीज समझनी है, if two vectors are perpendicular, the dot product of both vectors is 0. तब यहाँ पे पहला स्टेप ये लिखना है कि a bar dot b bar is 0. मतलब ये दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट क्या है? 0. अब ध्यान से देखो, a जो आपको गिवन है, सी a जो आपको गिवन है, the 3 components of a are given and also 3 components of b are given. मतलब a और b जो है वो components के फॉर्म में गिवन है. मैंने आपको बताया था, जब भी a और b components के फॉर्म में गिवन है, तब a डॉट b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ax bx plus ay by plus az bz. a डॉट b को आप ऐसे लिखो, ax bx plus ay by plus az bz. See, a dot b can be written this way. Now here ax bx means it's a magnitude of xx components you have to multiply. Here magnitudes of yy components you have to multiply. Here magnitudes of zz components will be multiplied. तो ध्यान से देखोगे तो इसका जो x component है वो 2 है, मैग्नीट्यूड 2 है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? m है. सो ax into bx जब आप करोगे it will be 2 into m. Here y components you have to multiply. इसका y component 3 है, इसका y component पता है 1 है, 1. It is 1 times j cap. 3 and 1. So it become 3 into 1. Now here zz components you have to multiply. इसका z component है 4. इसका z component है -3. So here it will be 4 into -3. Z components are multiplied. ठीक है? Equal to 0. So now this is -12 and this is +3. +3 and this is -12. It become -9. इसको सॉल्व करो, m आ गया. The m comes to be 9/2. This is the answer. m का वैल्यू है 9/2. I hope it is clear now. Clear है? Okay. Today we will start with a second question. एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. We are discussing the questions on dot product. Last time, if you remember, dot product की मैंने 6 characteristics बताई थी. 6 characteristics of dot product. तो dot product की प्लीज माइक ऑफ करो जिसने ऑन कर दिया. करो, एक पूछना था. प्लीज स्विच ऑफ द माइक.
ओके, सेकेंड क्वेश्चन अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड न्यूमेरिकल विल स्टार्ट. नोट डाउन द क्वेश्चन. If a bar is equal to, if a bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap, if a bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap and b bar is equal to, b bar is equal to minus 2 I cap, minus 2 I cap plus 5 j cap. Okay, full stop. Then find magnitude of, then find magnitude of component of a bar, magnitude of component of a bar along b bar, magnitude of component of a bar along b bar. So I hope आपने क्वेश्चन लिख लिया. Everybody written the question, right? So क्वेश्चन में आपको a bar given है. a bar क्या given है? 2 I cap plus 3 j cap. ठीक है, इसको पहले समझो. 2 and 3 are the x and y components of a bar. a bar को मैंने दो वेक्टर में स्प्लिट किया है. 2 and 3 are the components of a bar. Similarly, b bar is also given. It's minus 2 I cap plus 5 j cap. देखो यहाँ पे स्टूडेंट, आपके सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. ये minus 2 I cap का मतलब है this is a x component of the b, but minus I cap means it is a component along negative x axis. ये component negative x axis की तरफ है. ठीक है. Now यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? Look here. If I take a bar dot b bar, a bar dot b bar can be written as a b cos theta. ठीक है, where theta is the angle between a and b. और राइट हैंड साइड पे ये जो a है, it is a magnitude of the a, और ये जो b है, it is a magnitude of the b. ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको ये एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी. when we discuss 6 properties, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी करके कोई प्रॉपर्टी. एक बात, अब अगर मैं b cos थीटा को देखूं, if I take b cos थीटा together, see this, b cos theta will be the component of b along a. If you take b cos theta together, I can say b cos theta will be the component of b. But question में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि find the component of a along b, right? So अब क्या करो? Don't take b cos theta together. Take a cos theta together. Take a cos theta together. Write it this way. B a cos theta. Now tell me one thing. What is this a cos theta? I can say a cos theta. Actually, a cos theta is one of the components of a. A cos theta को हम लोग लिख सकते हैं component of a. A cos theta will be the component of a along b. ये मैंने पहले explain किया है. See the properties. So this bracketed a cos theta को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. A cos theta is a component of a. If you write b cos theta will be the component of b into this b equal to a dot b. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी डिस्कस की है हमने, राइट? दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लुक हियर, वी नीड टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ a along b. ये हमको फाइंड आउट करना है ना. वी नीड टू फाइंड दिस. इसको आप यहीं पे रखो, पास द b ऑन द अदर साइड. तो अब ऐसा फॉर्मूला आएगा, component of a bar along b bar
इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय बी। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्टिल दिस इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। यहां तक क्लियर है? ओके अब ध्यान से, इसके आगे कैसे बढ़ना है। नाउ सम स्टूडेंट मे बी कंफ्यूज कि सर ए डॉट बी को आगे क्या करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए के दो कॉम्पोनेंट्स गिवन है, बी के भी कॉम्पोनेंट्स गिवन है। मींस ए एंड बी आर गिवन इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म्स। ए एंड बी आर गिवन इन द कॉम्पोनेंट्स फॉर्म। तो ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, as we did in the previous question. A dot B can be written as ax bx plus ay by। यहाँ पे az bz नहीं आएगा because a and b are splitted into two components। तीन components है ही नहीं इसके। So ay by तक ही आएगा। az bz does not exist in this question। ठीक है, अब थोड़ा सोच के बताओ। ये जो डिनोमिनेटर में b लिखा है, न्यूमरेटर आई फिनिश, न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो b लिखा है ये क्या है, पहले आप उसको समझो। व्हाट इज दिस b एग्जैक्टली? इज इट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द b और इट इज अ b वेक्टर? ये सिर्फ b का मैग्नीट्यूड है क्या? व्हाट इज दिस b एग्जैक्टली? इट इज, आपको थोड़ा सोचो ध्यान से। इट जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द b। ये b का मैग्नीट्यूड है। करेक्ट? यस। ओके स्टूडेंट्स, आपका आंसर करेक्ट है। दिस b इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द b। यस यस, गुड। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं बट सब स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। हाँ, तो b इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द b। अब थोड़ा सोचो, b आपको ऐसा गिवन है, सी मतलब ये क्या गिवन है? b के दो कंपोनेंट्स गिवन है। यू आर हैविंग द टू कंपोनेंट्स ऑफ द b, बट हमें चाहिए b का मैग्नीट्यूड। सो इफ कंपोनेंट्स ऑफ b आर देयर विथ यू एंड यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द b, सो कॉन्सेप्ट ये है कि जो b का मैग्नीट्यूड होगा, आई एम राइटिंग ओवर हियर, b का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ b x square plus b y square। see this, when we discuss resolution of vector, a single vector can be resolved into two components। resolution में मैंने आपको सिखाया था अंडर रूट ऑफ वन कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट का स्क्वायर गिव्स यू b। ये फॉर्मूला से हमें b मिल सकता है, मैग्नीट्यूड। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके b निकालेंगे एंड दैट b आई विल सब्स्टिट्यूट हियर। यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे आप b की जगह ऐसा लिख दो, b इक्वल टू, ये लिख दिया। सो सी आई कंप्लीटेड राइट हैंड साइड नाउ। अब यहाँ पे देखो खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आई एडवाइज यू दैट यू प्लीज पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यहाँ पे खाली वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर निकलेगा। ax ay are the components of a, bx by are the components of b। सब वैल्यूज यहाँ पे डालो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट अ कंपोनेंट ऑफ a along b। इसको फिनिश करो अभी, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज हियर। put up the values here and solve। हाँ, वैल्यूज पुट करो सबकी, ax ay bx by az bz। अगर कोई कंपोनेंट में नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन लेनी है आपको। यू हैव टू टेक विद अ नेगेटिव साइन। इफ एनी कंपोनेंट इज नेगेटिव, टेक इट एज अ नेगेटिव कंपोनेंट ओनली। नेगेटिव साइन लो यहाँ पे। सो आई होप आप कर सकते हो इसको। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व। ठीक है, हाँ अब मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लूंगा, वो स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा कि हाउ मच आंसर यू गॉट। हाँ, सागर पवार। सागर पवार, माइक ऑन करो। सर नया एक कर रहा हूँ। यू आर न्यू? हाँ नो सर। ये फिजिक्स का कौन सा लेक्चर अटेंड कर रहे हो? फर्स्ट टाइम और लास्ट के 2-4 लेक्चर अटेंड किए? अटेंड किए सर।
तो आएगा कि फिलहाल नहीं आएगा? सर कर रहा हूँ 2 मिनट। ओके, देविका रविंद्रन, देविका रविंद्रन, Sir, have you got the answer? yes, sir. What's the answer? 28.5. 28? 0.5. Okay, tell me one thing, what you got as a numerator? Numerator में क्या आंसर आया? Numerator क्या मिला? Minus, sorry, 11. Numerator is 11. Hmm. Denominator? Root 29. Yeah, you can leave up to this. आपका 28.8 कैसे आ गया? How do you got 28.5? इसको divide किया. Do you know what is the root of 29? No. Then how you divide? किससे divide किया? यही, नहीं this is sir, the final नहीं. answer. Keep this only हाँ. as answer. See students, you have to find out the magnitude of the component of A along B. Magnitude ही निकालना है. ये magnitude आ गया है. 11 by root 29 is a magnitude. That's it. यही magnitude है. Okay, this is the answer. Everybody complete this. It's 11 by root 29. Okay, students, खाली value substitute करनी है. Put the value of ax, bx, ay, by और denominator. मैंने हर step का explanation दिया है कि ये कैसे लिखा है. Okay, so I hope it is completed. चलो एक last question और कर लेते हैं. Let's solve one more question on the dot product. चलो एक last question कर लेते हैं on the dot product. ठीक है. So this last question that I am telling you now, it is a very important question. मतलब बहुत important है, and many time it comes in exams also, in college exams. So the question that I am going to give you now, you can tick this important. Tick it as important. Okay, लिखो जल्दी. A body, right on the next question. A body moves from point. A body moves from point P. In the bracket, P के बाद bracket में लिखो 1, 2, 3. I repeat, a body moves from point P. After P, you write down in brackets 1, 2, 3. This 1, 2, 3 are the coordinates of P point. ठीक है, bracket over. T. Another point Q. Another point Q. In the bracket -1, -2, -3. -1, -2, -3. Bracket over. These are the coordinates of Q point. Huh? Okay. Comma. Bracket over, then comma. Under the action of a force. Under the action of a force. फोर्स के बाद लिखो F bar. Force F bar equals to force F bar equal to 3I cap plus 7J cap plus 2K cap. 3I cap plus 7J cap plus 2K cap. Full stop. Find the work done by this force. Find
the work done by this force. Okay, सबने क्वेश्चन लिख लिया? I hope you have written the question, but मैं एक बार quickly read कर लेता हूँ question. You just confirm आपने बराबर लिखा है कि नहीं. I'm just quickly reading. A body moves from point P 1, 2, 3 to the point Q -1, -2, -3 under the action of a force 3I cap plus 7J cap plus 2K cap. Then find the work done by this force. Okay, students. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो. पहले फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन. पहले मैं कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, उस पॉइंट पे ध्यान दो. See, suppose this is XY coordinate system. This is XY coordinate system. In this coordinate system, here is a P point. This is P point. Its coordinates are given 1, 2, 3. Now, there is one body. There is one body which is located at P point. Okay. On that body, a force is acting. Force is acting on the body. Let's say force is F bar. Okay. Now, because of this force, what is happening? The body is moving from P to Q. Let's suppose this is Q point. So, body is moving from P to Q. Okay. So, the body is displacing from P to Q. Body has some displacement. And also we have force. We need to find out work done. So, आपको work done की formula पता है. Work done is given by dot product of force and displacement. फोर्स को हमको गिवन है, फोर्स गिवन है इजीली. प्रॉब्लम है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है. वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखो. सी हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले यहाँ पे आपको एक न्यू टर्म सीखना है. यू हैव टू लर्न द न्यू टर्म. इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. Here you need to learn one new term which is called as position vector. ध्यान से देखो, position vector क्या होता है? अगर body P point पे है, let's say there is some body जो P point पे है, body is at P point. जब body P point पे है ना, then I can say that P is a position of the body. जब body P point पे होता है तो P उसका position है. This P point will be the position of the body. और जब body Q point पे जाएगी, अगर बॉडी Q पॉइंट पे, so I can say Q is the position of the body. This P and Q are known as positions. Okay. Okay. Now, what is position vector? If you draw one vector, if you draw a vector from origin till P point, see this vector that I drawn in the red color. It's a vector drawn from origin to the P point. If P is a position of the body, मैंने कहा था अगर body P point पर है तो P उसका position है. P is a position of the body. तो ये जो vector है ना, from origin up to P, इसको बोलते हैं position vector. ठीक है. अब origin से P तक draw करो, this is called position vector. जिनको अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको इस vector का magnitude और direction दोनों बता देता हूं. The direction of this vector is from O to P. डायरेक्शन O से P है, O to P. What is the magnitude? Magnitude of this vector. O से P तक जितना distance है, whatever is a distance from O to P, that is the magnitude of this vector. Suppose O से P तक it is a distance of 10 meters. So arrow की length कितनी बनेगी? 10 मीटर की length बनेगी. इसका magnitude 10 हो गया. This is called position vector. Okay. जब body Q पे जाएगी, when body is at Q, from origin you draw up to Q. Origin से Q तक draw करो. This is also position vector. Okay. अगर body P से Q पे गई है, body has gone from P to Q, तो I can say this position vector, इसको बोलेंगे initial position vector और Q उसका final position है. So this is final position vector. Initial position vector, final position vector.
क्लियर? हाँ, अब आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जस्ट नेम इट एज r1 बार, आई एम नेमिंग इट एज r1 बार। और ये क्या है, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, आई एम नेमिंग इट एज r2 बार। ठीक है, पहले अब हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे, गो स्लोली, बिकॉज वी आर हियर हैविंग अ न्यू टर्म पोजीशन वेक्टर, कोई टर्म समझना होगा। ठीक है, सो अभी तक जो मैंने बताया, आई होप ये क्लियर है। फ्रॉम ओरिजिन अप टू द पोजीशन यू ड्रॉ दिस, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड अ पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं। सी, लुक हियर दिस डायग्राम। स्टूडेंट्स, भले अभी नोट डाउन मत करो, चलेगा, बट समझ के लो, समझना ज्यादा जरूरी है। Look at this diagram. Suppose body is situated at P point. Body is at P point. So P is a position. P के coordinate suppose हमको given है 1, 2. So everybody knows this is called position vector ना। चलो ये position vector है, इसको मैं लिखता हूँ R बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, from P point, if I drop a perpendicular like this much, ध्यान से देखो, this will be equal to the x coordinate of P point. P point का जितना x coordinate है उतना ये होगा। P point का x coordinate 1 है ना, this much will be how much length? It will be 1. Okay, from P point draw the perpendicular on y axis. ऐसे ये दिख रहा है? See this. This will be equal to y coordinate of P point. जितना P point का y coordinate है उतना ये होगा। P point का y coordinate 2 है ना, this will be 2 in the length. Now if I resolve r bar into two components, all of you know how to resolve vector. So ध्यान से देखो, these are the two components of r bar. ये दोनों r bar के components हैं। ठीक है, ये जो component है r bar का, ये वाला, it's a x component and this is y component. तो x component की length कितनी होगी? x component की length होगी 1। अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज 1 i कैप। x कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 i कैप। y कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ y कंपोनेंट? 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 j कैप। कंपोनेंट्स को मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। दीज आर द टू कंपोनेंट्स एंड ऑल ऑफ यू नो, इफ आई ऐड द टू कंपोनेंट्स आई विल गेट अ r बार। r बार को ऐसे लिख सकते हैं 1 i कैप प्लस 2 j कैप। नाउ लुक एट दिस, ये 1 और 2 दिख रहा है, 1 और 2, 1 and 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इफ यू आर राइटिंग पोजीशन वेक्टर, इट इज लाइक कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट, x कोऑर्डिनेट एंड हियर y कोऑर्डिनेट, ऐसे होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 1 और 2 जो है, दीज आर द x and y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। If P point has a coordinates 3, 4, P के coordinate 3, 4 है, so here it will come 3 i cap plus 4 j cap. Clear? Student clear? तो थोड़ा समझो इसको। This is a way you can write position vector. ठीक है, तो यहाँ पे काम करो, this was example, come to this diagram. ये diagram पे आ जाओ वापस। अगर आपने ये diagram draw नहीं किया है तो you need to draw it. ठीक है, इसमें सीधे r1 बार, here I'm writing r1 bar is a position vector of P point. r1 बार क्या होगा? Everybody knows P के coordinates क्या है? 1, 2, 3. So r1 bar can be written as 1 i cap 2 j cap plus 3 k cap. It's 1, 2, 3. Similarly now r2 bar, यहाँ पे it's a position vector of q. तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1, -2, -3। तो r2 बार को ऐसे लिख सकते हैं -1 i cap
-2 j cap -3 k cap। स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं बस वही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे आ गए 1 2, यहाँ पे वही है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही लिखने हैं। दिस इज r1 बार r2 बार। अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो प्लीज ड्रॉ कर लो एंड राइट डाउन r1 बार r2 बार, देन आई विल प्रोसीड। नोट डाउन दिस। या कंप्लीटेड। सबसे पहले याद रखो r1 बार एंड r2 बार आर द पोजीशन वेक्टर्स। आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने हैं। ओके अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। सी व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इज अ वर्क डन। वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नाउ लुक एट इट, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, P से लेके Q तक आप एक डायरेक्ट एरो ड्रॉ करो। ड्रॉ द डायरेक्ट एरो फ्रॉम P टू Q। सी दिस। See this arrow. It's an arrow which is directly drawn from P to Q. अब सबको पता है यही डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं चलो S बार लिख देता हूँ। आई एम राइटिंग इट एज S बार। See this is displacement S बार। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस S बार। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इफ यू लुक एट इट, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। द ट्रायंगल इज OPQ। ये ट्रायंगल है। इन दिस ट्रायंगल इफ यू सी द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड लाइक 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स इस 3 साइड्स पे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। जिनको ट्रायंगल लॉ आता है, वी हैव डिस्कस ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखो, O से स्टार्ट होके यहाँ पे वेक्टर फिनिश हुआ, तो यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हुआ। और ये थर्ड साइड है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड फिनिशिंग अप टू Q। जिनको ट्रायंगल लॉ अच्छे से आता है, आई होप यू रिमेम्बर ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखो, ये ऐसे जाके ऐसे गए, ये डायरेक्टली ऐसा है। एनीबडी फ्रॉम यू कैन यू टेल मी, इनमें ट्रायंगल लॉ अगर आप अप्लाई करोगे ट्रायंगल लॉ, तो कौन से 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर है? विच वन इज अ रिजल्टेंट वेक्टर? या ट्राई टू आंसर। रिया उपाध्याय, आपका आंसर करेक्ट है। चलो, किंजल आल्सो करेक्ट। ओहो, एवरीबडी इज गिविंग करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। काफी नेम्स आ रहे हैं, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट्स ओके, योर आंसर्स आर करेक्ट। गुड, कीप इट अप। देखो, जिन स्टूडेंट को डाउट है ना कि इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, विच वन, इन तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो एक काम करो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट O। आप O पे खड़े हो। O से वॉक करके आप P पे गए। आपने R1 किलोमीटर वॉक किया। यू वॉक R1 किलोमीटर एंड यू रीच टू P। देन यू वॉक S किलोमीटर्स। S किलोमीटर वॉक किया, यू रीच टू Q। O से P गए, P से Q गए। उससे अच्छा अगर मैं डायरेक्टली O से Q जाऊं बाय ट्रेवलिंग R2 किलोमीटर, डायरेक्टली O से Q जाऊं, तो रिजल्ट तो सेम आएगा। आई विल रीच फ्रॉम O टू Q। R2 इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड S। सो हियर आई कैन राइट सॉल्यूशन में। आप ऐसे लिखो, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ R2 बार इज इक्वल टू R1 बार प्लस S बार। वेक्टोरिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट एडिशन ऑफ R1 एंड S इज इक्वल टू R2। ठीक है, अब देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज S बार। इफ यू वांट टू फाइंड S बार, प्लीज पास R1 ऑन द अदर साइड। I can write down that S bar is equal to R2 bar minus R1 bar.
राइट? ठीक है, अब देखो आज मैंने ये सब स्लोली बताया, बट ये जो रिजल्ट मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे, आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये क्या है, ध्यान से देखो। R2 बार इज अ फाइनल पोजीशन वेक्टर, R1 बार इज अ इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। दिस इज चेंज इन पोजीशन। देखो R2 फाइनल पोजीशन है और R1 इनिशियल पोजीशन है। From final position, if you subtract initial position, this is called as change in position vector. Today onwards, you please remember, change in position gives you displacement. Displacement is defined as change in position. ये आप आगे के चैप्टर्स में भी सीखोगे, बट याद रखोगे तो बेटर है। याद रखो, हमेशा आप चेंज इन पोजीशन फाइंड करो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव्स यू द चेंज इन पोजीशन। द चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, R2 और R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। R2 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R2 बार को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, इट इज R2 बार। देन गिव अ माइनस साइन। नाउ R1 बार को भी लिखो ब्रैकेट में। R1 बार क्या है, याद है, इट्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये देखो 1 2 3, these are the coordinates of P point. यहाँ पे -1 -2 -3, these are the coordinates of Q point. अब इसको सॉल्व करना इजी है। इफ यू ओपन अप द ब्रैकेट, यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो माइनस आई कैप एंड हियर आल्सो माइनस आई कैप, इट बिकम माइनस 2 आई कैप। यहाँ पे देखो माइनस 2 जे कैप एंड आल्सो माइनस 2 जे कैप, इट बिकम माइनस 4 जे कैप। माइनस 3 के कैप माइनस 3 के कैप, तो इट बिकम माइनस 6 के कैप। क्लियर है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट आई होप ये पूरा क्लियर है, देख लो। This is a way you can find out displacement vector. अब एक स्टूडेंट स्नेहा, आई थिंक स्नेहा इज टेलिंग दैट रिपीट करो। सर क्या रिपीट करना है, पूरा क्वेश्चन की लास्ट स्टेप्स कुछ रिपीट करने हैं, वो बताओ। यू नीड एंटायर क्वेश्चन अगेन और यू नीड ओनली लास्ट स्टेप? स्नेहा को लास्ट स्टेप चाहिए। देखो बेटा सिंपल है, आपको मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्ट करने आता है ना, नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये माइनस साइन ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म विल बी माइनस आई कैप, और यहाँ पे भी देखो माइनस आई कैप है। माइनस आई कैप और माइनस आई मिलके माइनस 2 आई कैप हो जाएगा। जैसे माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलके क्या होता है, माइनस 2x हो जाता है। माइनस 3 मिलके माइनस 6 हो जाता है। तो देखो ये माइनस आई कैप और ये भी माइनस आई कैप, इट बिकम माइनस 2 आई कैप। माइनस 2 जे कैप, ये देखो माइनस 2 जे कैप, ब्रैकेट ओपन करो ना, माइनस 2 जे कैप, हियर आल्सो माइनस 2 जे कैप, दोनों को ऐड करो, इट बिकम माइनस 4 जे कैप। माइनस 2 ऐड विथ माइनस 2 कितना होता है, माइनस 4 होता है ना, वैसा है। माइनस 3 जे के कैप माइनस 3 के कैप, ये देखो माइनस 3 के कैप माइनस 3 के कैप, इट बिकम माइनस 6 के कैप। क्लियर? सो स्टूडेंट आई होप आपको समझा अभी। दिस इज अ वे यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। सो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट यू गॉट माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये पता है क्या है, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आपने 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी गिवन है, फोर्स इज 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आई थिंक फोर्स गिवन है। नाउ वी आर हैविंग फोर्स, आल्सो वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी कैन फाइंड आउट वर्क डन।
Now look here, work is given by F bar dot product with S bar. ठीक है, इस डॉट प्रोडक्ट को अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, F के 3 कंपोनेंट्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट्स गिवन है। तो अगर 3 कंपोनेंट्स गिवन है F और S के, तो पता है F डॉट S को क्या लिखना चाहिए? F डॉट S को आप ऐसे लिखो, Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। रिमेंबर दिस इज अ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। जब भी A और B या F और S 3 कंपोनेंट्स गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज लाइक Ax Bx Ay By Az Bz। वैसा ही है सेम। यहाँ पे F और S दोनों का XX कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे YY कंपोनेंट, यहाँ पे ZZ कंपोनेंट, खाली मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई करने हैं। मतलब ये ऐसा होगा, -2 into 3 XX कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, -2 into 3 दिस बिकम -6। यहाँ पे क्या है, YY कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब -4 into 7, -4 into 7 will be -28। और यहाँ पे क्या है, ZZ कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के Z कंपोनेंट्स, मतलब -6 into 2, -6 into 2 will be -12। ठीक है, ये है। बस इसको आप सॉल्व करो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इट विल कम माइनस, क्या आएगा पता है, -46 जूल्स। वर्क डन माइनस में आ सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। वर्क डन माइनस का मतलब होता है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया था ना बॉडी पे, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स अगर बॉडी का एनर्जी लॉस होता है, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव आता है। इफ देयर इज अ गेन ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी, देन वर्क डन कम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क मतलब गेन ऑफ एनर्जी होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी से नेगेटिव वर्क आता है। यहाँ पे नेगेटिव वर्क किया है, -46 जूल इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आई होप ये क्लियर है पूरा। काफी लंबा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम करने पे लंबा लगता है, बट एज यू विल डू सम मोर प्रैक्टिस आपका ये इजीली हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख लो, एक बार फिर से एकदम क्विकली बता देता हूँ। बॉडी मूव्स फ्रॉम P to Q, so P is the initial position, Q is the final position। O to P, this is initial position vector, this is final position vector। एक पॉइंट खाली याद रखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन, विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा R2 बार माइनस R1 बार करके। ठीक है, R2 और R1 कैसे निकालना है? P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, दैट विल बी द R1 बार। ये मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। वैसे ही Q के भी पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करो, बिकॉज Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, -1, -2, -3। R2 माइनस R1 करो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। So once you got displacement and once you got force, डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे करके लिखना है। ये हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। तो सॉल्व करके देखो आंसर आ गया। So I hope ये क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। टुडे जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब आपके लिए न्यू है, फर्स्ट टाइम यू हैव डन दिस ऑल क्वेश्चन। मेरी एडवाइस रहेगी, कल से पहले मतलब आज के आज या कल मॉर्निंग तक आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना कि कैसे किया गया है। बिलीव मी स्टूडेंट, एक बार देखेंगे ना तो ये आपके माइंड में बहुत दिन तक रहेगा, एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स यू विल रिमेम्बर। बट अगर आपने ऐसा किया कि मैंने करा दिया, आपने एक बार भी इसको नहीं देखा कल, so after 1 week you will not be able to solve these questions again। so कल के कल इनको रिवाइज करना, because all these questions are new for you और काफी डिफिकल्ट भी है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप कल के लेक्चर में पूछ सकते हो। तो here I have finished dot product। now those who remember dot product के बाद एक प्रोडक्ट और थी which is called cross product। so you can put the heading cross product। another name for cross product का दूसरा नेम था वेक्टर प्रोडक्ट।
Another name of cross product is vector product. आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स. प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो हमने डॉट प्रोडक्ट फिनिश कर दिया. ना नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. आज मैं खाली इसका स्टार्टिंग बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन आई विल गिव. इसकी बाकी चीजें हम लोग कल ही कंप्लीट कर पाएंगे. टुमारो विल बी एबल टू फिनिश इट. ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज if you take one vector, multiply it with other vector, ये दो वेक्टर आपने मल्टीप्लाई किए. अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर भी वेक्टर है. If multiplication of two vector gives us a new vector, then this product is called as vector product. याद है, ये कराया एक बार पहले भी. जिनको इसमें डाउट है, एक सिंपल याद रखो. सपोज ए बार एक फिजिकल क्वांटिटी है. ए बार इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ए बार सपोज फोर्स है. बी बार एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है. अगर हमने ऐसा देखा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा जो क्वांटिटी आ रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, ये भी वेक्टर है, तब इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. जब दो वेक्टर की प्रोडक्ट से वेक्टर ही ऑब्टेन होता है, इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. आई होप आपको याद है ये. इसमें नाउ दिस सी बार इज अ वेक्टर, राइट? अगर सी बार वेक्टर है, so C bar will have a magnitude and also C bar will have a direction. C bar will have a magnitude and also it will have a direction. C bar का जो magnitude होता है वो इतना होता है. I am writing over here. This is a magnitude of C bar. ये C bar का magnitude है. अब C bar का डायरेक्शन कितना कैसा होता है? C bar का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. आई होप ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीक. तो सबसे पहले ये याद रखो, C का जो मैग्नीट्यूड है इट इज AB sin थीटा और C का जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. क्लियर? कल मैं, आज तो इतना टाइम नहीं रहेगा, कल मैं इसका जब ये प्रोडक्ट कंप्लीट होगी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा. आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मतलब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके बताऊंगा. उससे आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे AB sin थीटा क्यों आता है. बट एज ऑफ नाउ यू रिमेंबर, टुमारो एट द एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू वन प्रॉपर फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आती है कि व्हाई दिस sin थीटा इज देयर. ठीक है, अब फिलहाल आप ये याद रखो, मैग्नीट्यूड इज AB sin थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. क्लियर? ये AB sin थीटा ध्यान से देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. तो अगर A और B दो वेक्टर्स है, इनके बीच की एंगल आपको नहीं पता तो आप C फाइंड नहीं कर सकते. C डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन A एंड B. ऑल्सो ये क्या है, दिस A इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द A, दिस B इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ B. स्टूडेंट आई होप ये क्लियर है. ठीक है, एक बार ये जब कंप्लीट हुआ इसके बाद आप एक हेडिंग पुट कर सकते हो. पुट ए हेडिंग, properties of cross product. Properties of cross product. The cross product also have some unique properties. कुछ इसकी unique properties है जो बाकी product में नहीं होती है. ठीक है, properties बहुत important होती है because numericals जो होते हैं वो properties के ऊपर ही पूछे जाते हैं. अगर आपको याद है, डॉट प्रोडक्ट में भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इन ऑल 6 प्रॉपर्टीज बी डिस्कस्ड इन द डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली इन द क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो देयर आर 6 प्रॉपर्टीज. 6 प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस. ठीक है, आज मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं. लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सी हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी. लुक हियर. If I say A bar cross B bar, see here, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे वेक्टर ऑब्टेन होगा. दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वेक्टर. ये प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है. अगर हाँ कुछ बोल रहा है क्या, कोई क्या बोलना है? ठीक है स्टूडेंट्स, इफ आई टेक A क्रॉस B, इससे क्या मिलता है? इससे वेक्टर मिलता है ना. बट सपोज मुझे खाली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर चाहिए. आई वांट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर.
तो उसके लिए एक सिंबल होती है, सी दिस सिंबल, इसको आप मैथमेटिक्स में मॉड बोलते हो, मॉड। मॉड पता है ना? अगर यहाँ पे मॉड डाल दिया, यहाँ पे मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मतलब a क्रॉस b gives you, a क्रॉस b is a vector, this product will give you vector, but mod का मतलब है magnitude of that vector. Magnitude of this product is ab sin theta. इस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे मॉड डालना है, मॉड मींस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी ab sin theta. करेक्ट? ये आपको पता है। सिमिलरली इफ आई टेक b बार क्रॉस a बार, b बार क्रॉस a बार, देखो मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। नाउ आई एम राइटिंग b फर्स्ट, a सेकंड, b पहले लिखा है, a बाद में लिखा है, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी ba sin theta, ba sin theta. करेक्ट है? थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a। आपको पता है a और b या b और a, एंगल तो सेम ही रहेगा। दिस थीटा एंड दिस थीटा विल बी सेम। आपको पता है इन दोनों इक्वेशंस जो मैंने लिखी है, इनका राइट हैंड साइड सेम है, RHS इज सेम, RHS सेम है। तो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड, दिस मॉडुलस, मतलब ये मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक समझा? लेकिन एक बात, this is a cross product of two vectors. Cross product of two vectors is a vector, बराबर? Cross product of two vector gives you vector. ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट डायरेक्शन भी होगा ना, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b से जो वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन मैं निकाल रहा हूँ, और b क्रॉस a will also give you one vector, b क्रॉस a से भी वेक्टर मिलेगा, उसका भी मैं डायरेक्शन निकालता हूँ। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। See, first of all, let's say this is a bar, समझिए a bar है, and this is b bar, a और b है, ठीक है? Suppose now, suppose a bar क्रॉस b bar करके, a बार क्रॉस b बार करके हमको c बार मिलता है। Let's suppose a cross b gives us c. So how to find direction of this c? Right hand thumb rule. कैसे लगाना है? आपने देखो ये प्रोडक्ट में आपने a पहले लिखा है ना, ये कीप a फर्स्ट। सो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको a पे रखना है। We have to keep our fingers on a. Then we will turn up to b. ये देखो, see this a and b. ध्यान से देखो, ये मेरा राइट हैंड है, माय फिंगर्स आर रोटेटिंग फ्रॉम ए टू बी। ये देखो, फिंगर्स ए से बी की तरफ घूमना चाहिए। सो स्टूडेंट, थंब कहाँ जा रहा है? थंब ऊपर जा रहा है ना, थंब ऊपर जा रहा है, लाइक दिस। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी बार। सो ए क्रॉस बी विच इज सी बार, सी बार का डायरेक्शन ये है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस पे, बी क्रॉस ए। The magnitude of b cross a, the magnitude of this vector is ba sin theta. But how to find direction of b cross a? Right hand thumb rule. If I take b cross a, suppose b cross a gives me d bar. b cross a से d bar मिलता है। How to find direction of d bar? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule कैसे लगाएंगे? आपने यहाँ पे b को पहले लिखा है ना, पहले क्या लिखा है? b लिखा है, तो आपकी फिंगर्स B से स्टार्ट होके A पे जाएंगी। योर फिंगर्स विल रोटेट फ्रॉम B टू A। तो देखो, ये मेरा राइट हैंड है, मेरी फिंगर्स B से A की तरफ जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे, सर ये देखो B से A। नहीं, आपका हाथ खुलना नहीं चाहिए, आपका हाथ बंद होना चाहिए। योर हैंड शुड मूव इनवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स। सो फिंगर्स कहाँ से कहाँ टर्न करनी है? B से A। तो ऐसा करना होगा। देखो, यहाँ पे थोड़ा लाइव समझाना मुश्किल हो रहा है। कीप योर फिंगर्स ऑन बी लाइक दिस, टर्न अप टू ए लाइक दिस, ऐसे टर्न होगा। सी, यहाँ पे देखो, ये बी है ना और ये ए है, तो फिंगर्स बी से ए पे ऐसे टर्न होंगी। देखो, इससे देखो मेरा हाथ बंद हो रहा है, थंब नीचे जा रहा है ना, थंब इज गोइंग डाउन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड,
इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए से जो वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। सो एटलीस्ट ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ना, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। दिस मॉड मींस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर सेम है, बट सी डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपोजिट है, सो आई कैन नॉट से दैट दे आर इक्वल। मैं ये नहीं बोल सकता दोनों इक्वल है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है इट इज नॉट सेम एज द वेक्टर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बी क्रॉस ए, दोनों अलग है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, बी क्रॉस ए से जो वेक्टर मिला इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दोनों सेम नहीं हुए ना डायरेक्शन में। आई थिंक ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, दीज टू आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। ये डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। सो स्टूडेंट रिमेंबर ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। आपको याद होगा मैंने बताया था इफ ए क्रॉस बी इज सेम एज बी क्रॉस ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे देखो a इंटू बी इज नॉट सेम एज बी इंटू ए, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये है पहला प्रॉपर्टी, आज यही तक करना है, इसको पहले फिनिश करके लो। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आज भी पूछो या कल पूछो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट अभी एक किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा कुछ, वो डाउट मैंने रीड नहीं किया है, प्लीज यू ओपन योर माइक एंड आस्क दैट डाउट। किसी ने अगर डाउट पूछा है तो माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई डाउट आई थिंक। सो स्टूडेंट, हाँ रोहित येवले,